Good morning, students. Am I audible? Yes, sir. We will wait for some time and then we will start our session. From D division, only 11 students have joined. From C division, only 14 students have joined. So let us wait for 2-3 minutes. Then we will start our session. Ishan Alaude, am I audible? Yes, sir. Okay. Rushikesh, am I audible? Yes. Okay, thank you. Now, all of you have to do one thing. You have to rename yourself by your division and roll number. Okay. See, for example, if your roll number is D01, then you will write D-01 and your first name and then your last name. So all of you rename yourself. All of you have to rename yourself and you have to be muted. सगळ्यांना म्यूट राहायचंय. जेव्हा तुम्हाला काही विचारलं जाईल त्यावेळेला तुम्ही आन्सर करायचं आहे. ठीक आहे. Now, can you see this syllabus? Yes, can anyone answer from C division, from D division? Can you see this syllabus? Yes, sir. Yes. You are from? C division. Okay. Anyone from D division? Can anyone reply from D division? Can you see this syllabus? Am I audible in D division? Aditya Rasa, am I audible? Aditya Rasa, am I audible? Aishwarya Sangve, am I audible? Nobody is responding from D division. Akanksha Jadhav, am I audible? Yes, anyone from D division, am I audible?
Yes, sir. Okay, what is your name? Shantanu Mane. Shantanu Mani. You are from D division, no? Yes, sir. Okay. And can you see the syllabus file? Yes, sir. We can. Okay, good. Now, I hope C division and D division both can see this file as well as they can listen. Okay. So let us wait for 2-3 minutes more and then we will start our session. From C division, only 45 students have joined, and from D division, 36 students have joined. So this is, let's wait for some time. Till that time, you can rename yourself. You have to rename your name, just like over here, Aditya Rasal is showing, isn't it? So you have to rename like your division dash your roll number space, then your first name, then your last name. Just like these two have done. D-27 Ajinkya Hulavle he has done. Then D-54 Rushikesh Rathod he has done. Similarly for C division also. C division students, you have to do the same thing. And D Sneha Bakde, you have to join from Google link, not from the Zoom meeting. Very good, very good. There are some students of D division who have joined from Zoom link. All of you mute yourself. Om Kingre, you don't have to chat over here. जेव्हा मी सांगेल तेव्हा तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये काय टाईप करायचंय आन्सर्स वगैरे ते तुम्हाला मी सांगेल योग्य त्या वेळेस. Very good. C division students have renamed themselves. Very good. But few D division students are there in Zoom meeting. So they can leave Zoom meeting, D division students, and you can join your Google Meet link. Okay. Okay. Now let us start our session. See, first of all, good morning to all of you. And Aishwarya, I didn't got the roll number. ओके ठीक है. जिसको भी रोल नंबर मिला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन रीनेम बाय योर डिवीजन D-00. ओके, जिसको रोल नंबर नहीं है ये केस सिर्फ डी डिवीजन में है. सो D-00 ऐसे आपको रीनेम करना है और बाद में आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. ठीक है. ओके. नाउ I think all of you are aware about this online teaching, isn't it? Whenever you have any sort of an doubt, any sort of an query, you can unmute yourself. तुम्ही unmute करा स्वतःला आणि मग तुमचं जे काही क्वेरी असेल ती सांगा. आपको जब भी कभी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप अनम्यूट हो सकते हो और डाउट पूछ सकते हो. ठीक है ना. बट फॉर एनी अदर टाइम यू हैव टू बी म्यूटेड. आप चैट बॉक्स में भी अगर कुछ टाइप करोगे तो शायद देख नहीं पाऊंगा मैं. तो आपको अनम्यूट होना है और कुछ भी डाउट है तो पूछना है. तो उससे पहले मुझे बताना है कि आपकी डिवीजन कौन सी है. ठीक है ना. और बाद में आपका डाउट पूछना है. ओके. आई होप इट इज. अच्छा विशाल, अभी कुछ टाइप नहीं करना है. ठीक है. जस्ट अ मिनट. ओके ठीक है. सो how many of you have gone through this particular PDF? Now anyone can from C and D division, can you see this PDF? Just reply. Yes. Yes, sir. I'm from Yes, C sir. division. Yes. Okay, C division can see, and D division? Why D division students are not responding? Is there any problem with D division?
46 students are there from D division. Anybody can respond. Can you see this particular file? Yes, sir. Okay, good. Thank you. You replied. Chalo. Now, I don't think so that anybody has gone through this particular PDF file. If अगर आपने किसी ने अगर ये PDF file देखी होगी तो it is really very good. Okay. Now, as both the division C and D division, you are in second group, division A and division B, that is in the first group. Okay. अब ये दोनों groups क्या है that we will discuss. ठीक है. Whenever you are going through the syllabus, what you have to make sure that you have to go through the syllabus of Savitribai Phule Pune University. ठीक है. Then which first year syllabus you have to go through. Then you have to see 2019 pattern. Okay. Or 2019 course. It was being introduced in the academic year of 1920. तो ये 1920 से इंट्रोड्यूस हुआ है. ठीक है. जब सेकेंड सेमेस्टर चालू था इन द मार्च 2020, एट दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली कोविड के वजह से वो पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ. सो अनफॉर्चुनेटली 2019 कोर्स ये अभी पूरा का पूरा ऑनलाइन ही चल रहा है. लास्ट ईयर टोटली ऑनलाइन कंप्लीट हुआ है और लास्ट ईयर के जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो अभी सेकेंड ईयर में गए हैं, बट उनका टोटल क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर ऑनलाइन में ही उनका स्पेंड हुआ है. ठीक है. सो देन दिस इज व्हाट यू हैव टू सी. देन लेटर ऑन आपको ये टोटल 8 सब्जेक्ट्स नजर आएंगे. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको नजर आएंगे. बट अभी इनको पढ़ना कैसे है. ठीक है. So for engineering mathematics 1 and system in mechanical engineering, both these subjects are common for all the first year branches irrespective of their branch. ये दोनों जो सब्जेक्ट है वो सारे ब्रांचेस को कॉमन है. ठीक है. सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ये दो सब्जेक्ट्स सारे ब्रांचेस को, सारे डिविजन्स को कॉमन है. ठीक है ना. ओके. उसके बाद अब आती है बारी ये सब्जेक्ट की. तो फॉर यू पीपल फॉर डिवीजन सी एंड डिवीजन डी, यू आर गोइंग टू स्टडी इंजीनियरिंग फिजिक्स इन दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर, दैट इज योर सेमेस्टर 1. और केमिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट रहेगा वो आप सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे. ठीक है. देन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे. और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये आप करंट सेमेस्टर में पढ़ोगे, सेमेस्टर 1 में. देन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सब्जेक्ट आप करंट सेमेस्टर में पढ़ोगे. और ये वाला जो सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे. ठीक है ना. देन ये जो प्रैक्टिकल है वर्कशॉप, ये वाला सभी डिविजन्स को, सभी ब्रांचेस को कॉमन है. ठीक है. And it is only the practical thing. Then last thing is audit course. ठीक है. तो ये जो audit course है ये भी सभी लोगों को common है और compulsory audit course हमें इस semester में पढ़ना है. That is nothing but the environmental studies. तो देखेंगे step by step ये क्या होता है. Okay. So is it clear which subjects you are going to study in this particular semester? Or if anybody has any doubt, they can ask. कुछ अगर पूछना है सब्जेक्ट में, अगर कुछ डिफिकल्टी है, कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं, तो अभी आप पूछ सकते हो. पर्पसली आई विल बी गोइंग स्लो टुडे. ठीक है ना. मैं बहुत स्लो जाऊंगा बिकॉज दिस इज अवर फर्स्ट डे ओनली एंड दिस इज फॉर फर्स्ट लेक्चर. ठीक है ना. तो आज हम लोग स्लो थोड़ा डिस्कस करेंगे. बट वंस वी मूव अहेड इनटू आवर सब्जेक्ट, देन वी विल हैव द पेस, इजंट इट. तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे.
नाउ इज इट क्लियर? सब्जेक्ट के लिए कोई डाउट नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे यस सर बोला करो ताकि मुझे भी फीडबैक मिलते रहे। ठीक है, चलो गुड। नाउ अब आपने यहाँ पे देखा होगा ये टीचिंग स्कीम क्या है। अच्छा, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे मेन क्या है, ये जो कोर्स कोड है ये भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, देन सब्जेक्ट नेम। अभी हम लोग डायरेक्टली हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस सब्जेक्ट इज नथिंग बट द सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। Okay, though you are from computer background, though you have chosen computer branch, though you have chosen IT branch, ENTC branch, civil branch, mechanical branch, any branch, ठीक है, but you will have to go through the all the subjects which are there in the first year syllabus. It can be you will be studying in the first semester or you will be studying in the second semester, but you will have to study it. From that, this particular subject, that is system in mechanical engineering, it will be compulsory subject for all the divisions, all the branches in the semester 1, first semester. ठीक है ना? Then so if we consider it theory, so we are going to have 3 theory lectures per week. Then we are going to have 2 practical sessions per week. Okay, but अभी इसको बड़े बड़े star marks है because we are running online, so we may change it. ठीक है, right now if you have observed your timetable, then we have SME lecture. इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग SME बुलाएंगे इसको। ठीक है ना, तो SME lecture will be there every day. ठीक है, so weekly we will be having 5 lectures. ठीक है, and once we complete our theory session, then we will move to the practical session which are based on that particular part. Okay, so this is what is all about theory and practical. अब ट्यूटोरियल तो हमें है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर डैश है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज हमें जो देखना होता है, या फिर हम फॉर व्हाट वी आर ओवर हियर, एग्जामिनेशन स्कीम एंड मार्क्स। सर हमें कौन सी एग्जाम देनी है, सर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो वो वाला चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ भी अगर डाउट हो तो बेझिझक बिना शर्माए काही लाज वाटू द्यायची नाही आणि मला विचारायचं, अनम्यूट करायचं आणि डाऊट विचारायचा, काही टेन्शन नाही. ठीक आहे, डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एन लैंग्वेज बैरियर. हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज मुझे आती है, समझती है. सो मैं ट्राई करूंगा कि ये तीनों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ. ठीक है ना, सो यू विल हैव टू आस्क मी. ओके, सो okay, first is this ISE. So what is it? This is in semester examination. Okay, तो what it is in semester examination, तो मतलब क्या है, ये सेमेस्टर के बीच में आपका एक एग्जाम होगा. ओके, तो वो कितने मार्क्स के लिए होगा? इट विल बी फॉर 30 मार्क्स. ठीक है, एंड दिस इज ESE. सो व्हाट इट इज? एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन. तो ये पूरा जो सेमेस्टर है उसके एंड में होगा, आखिर में, एंड इट विल बी फॉर 70 मार्क्स. ओके, नाउ अब ये एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब होगा, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब होगा, व्हाट इज द सिलेबस फॉर बोथ दिस एग्जामिनेशन, वी विल डिस्कस. ठीक है, तो यूजुअली जब 2019 में ये जो एकेडमिक ईयर है, ठीक है ना, 2019-20 में, तब ये जब सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम पे ये जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन थी, इट वाज कंडक्टेड बाय SPPU, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. ये उन्होंने कंडक्ट की थी. मतलब क्या हुआ था, उन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया था. ठीक है, और फिर आप लोगों ने ये 30 मार्क्स की एग्जाम दी थी. ओके, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड 2020-21 वाला जो बैच था, तो ये वाला जो एग्जाम हुआ, अच्छा वो जो हुआ था वो ऑफलाइन वाला एग्जाम हुआ था उस टाइम पे. बट लास्ट ईयर ये जो एग्जाम हुआ, इट वाज ऑनलाइन एग्जामिनेशन. ठीक है, एंड विच वाज कंडक्टेड बाय द कॉलेज, नॉट बाय द यूनिवर्सिटी. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस द मार्क्स वर गिवन बाय द कॉलेज फैकल्टी.
ठीक है। तो अब ये कब होता है? तो ये एग्जामिनेशन जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, इमीडिएटली आफ्टर वन, सर योर वॉइस इज नॉट हियर। अच्छा, हर्षदा इज सेइंग मेरा आवाज नहीं आ रही है, तो इज इट देयर फ्रॉम सी रिविजन? एम आई Yes, it ऑडिबल? is. अच्छा, माझा Yes, आवाज sir, येतोय? it's clear. इट्स It's क्लियर clear. ना? Yes, sir. ओके, Yes, Oh, sir. ओके ओके, थैंक यू। सी, कभी भी अगर आपको ऐसे लगे कि आवाज नहीं आ रही है या फिर कुछ दिक्कत हो रही है, सो व्हाट यू कैन डू, आप मीटिंग छोड़ सकते हो, यू कैन लीव द मीटिंग एंड अगेन यू कैन ज्वाइन द मीटिंग, ठीक है ना? सेम केसेस विद दी अनदर डिवीजन आल्सो, वेदर इट इज डी डिवीजन। आपको अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो और फिर से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट इज ओनली फॉर some technical issue. Otherwise you have to be there in the meeting only, ठीक है। अब देखो कि डी डिवीजन से only 49 students have been joined and from the A division C division 62 students have joined, ठीक है, गुड। चलो, तो अगर अभी ऐसे है, आवाज की दिक्कत है तो मुझे बताओ, ठीक है, मुझे रुकाओ और मुझे बताओ कि कुछ तो इशू है। Okay, yes, we will come back to our point, that is in semester examination। तो ये कब होती है? जब आपका सेशन स्टार्ट होता है उसके इमीडिएटली 1 मंथ के बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद आपकी ये एग्जाम होती है। नाउ सी, आपका सेशन कब स्टार्ट हुआ है? तो 27 से स्टार्ट हुआ है, सो मोस्ट प्रोबेबली in the 3rd or 4th week of the January. Can you see the calendar? Yes, sir. Yes. Good. Yes, sir. Okay, good. Most probably in the 3rd week of the January or in the 4th week of the January, you will be having this examination, in semester examination of 30 marks. 30 मार्कासाठी तुमची ही परीक्षा होणार आणि ती कधी होणार? 3rd week of January और 4th week of January 2022, ठीक है। Now it is clear। तो अभी से आपको स्टार्ट करना है, you will have to start your study and what system it will be having। ये मतलब ये एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये सबसे डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है ना, क्योंकि और जिसका आंसर मेरे पास भी नहीं है ऑब्वियसली, इसीलिए मैं उसको डिफिकल्ट सवाल पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी द इशू इज पेंडिंग विद द यूनिवर्सिटी फॉर द 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। नाउ आप लोग अभी डे टू डे न्यूज़पेपर आप देखते होंगे, तो 3rd ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो है वो ड्यू है, उनकी एग्जाम अभी होने वाली है, तो वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इसमें अभी थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है। तो उस डिस्कशन का जो भी कंक्लूजन आएगा उसके हिसाब से आपकी ये वाली एग्जाम होगी, मे बी ऑनलाइन मे बी ऑफलाइन, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्टार मार्क इसके लिए है। तो आगे से सर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन कैसे होगी, ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है, या फिर रादर किसी भी फैकल्टी के पास इसका जवाब नहीं होगा। हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट दैट विल बी गेस ओनली। तो कोई मतलब परफेक्ट जवाब किसी के पास नहीं होगा unless and until that anybody has a letter or an official order from the Pune University। पुणे यूनिवर्सिटी जैसे बताएगी वैसे वो एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ द एग्जाम। ओके, नाउ मार्क्स पता चल गए, ये एग्जाम कब कंडक्ट होने वाली है ये भी पता चल गया। अच्छा, जो मैंने कहा इट विल बी हेल्ड इन 3rd और 4th वीक ऑफ जनवरी, अगेन इसको भी स्टार मार्क है, दिस इज टेंटेटिव वन, ठीक है ना, इसका कोई सर्कुलर अभी पुणे यूनिवर्सिटी से आया नहीं है, बट यूजुअली इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन सेमेस्टर स्टार्ट होने के इमीडिएटली 1 महीने के बाद होता है। तो उस बेसिस के ऊपर मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं ये गेस लगा रहा हूँ कि ये तब होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई नहीं ऐसा बताएगा कि सर एसएमए वाले सर ने तो बता दिया तो वही फाइनल है। दिस इज माय गेस बेस्ड ऑन दी
previous things, isn't it? तो वो guess है. और second thing, what will be the syllabus for this in semester examination? So for all the subject, the syllabus will be same. And what that syllabus will be? Unit number 1 and unit number 2. ठीक है. अब एक पूरे इंजीनियरिंग के करिकुलम में एक चीज कॉमन है. सारे यू आर गोइंग टू स्टडी 40 सब्जेक्ट्स इन योर 4-year डिग्री कोर्स. ठीक है ना. तो उसमें एक चीज कॉमन रहेगी, दैट फॉर एवरी सब्जेक्ट यू विल बी हैविंग, जस्ट अ मिनट, ओके, फॉर एवरी सब्जेक्ट यू विल बी हैविंग 6 यूनिट्स फॉर स्टडिंग. आपको कोई भी सब्जेक्ट हो तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 6 यूनिट्स रहेंगे. ठीक है. तो आउट ऑफ दैट फॉर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपको पहले 2 यूनिट है. ठीक है. यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2. इज इट क्लियर? इसमें कुछ डाउट है क्या? पूछ लो. अभी इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कुछ डाउट है तो वो पूछ लो. No, sir. Sir, can you explain again? Any other comments? ठीक है. Explain again, sir. ओके, वेरी गुड. मैं फिर से भी बता रहा हूँ कि इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ISE. तो ISE स्टैंड्स फॉर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन. ठीक है. ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए 30-30 मार्क्स की होती है. ओके. और ये यूजुअली कब होती है? जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिट होते हो या फिर एडमिशन लेते हो उसके इमीडिएट 1 मंथ के बाद. ठीक है. और उसका सिलेबस जो होता है दैट इज द यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है. और टेंटेटिवली ये एग्जामिनेशन कब हो सकती है? टेंटेटिवली इट विल बी इन द मंथ ऑफ जनवरी, 3rd वीक और 4th वीक. ठीक है. तो ये टेंटेटिव है. और ये कौन कंडक्ट करेगा? आइदर SPPU विल कंडक्ट, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टिंग इट, और we as an Mose College will be conducting it. If Mose College will be conducting, then for your division I will be conducting it. मैं ये कंडक्ट करूंगा आप लोगों के लिए. ठीक है. अब इसका मोड कैसे रहेगा? ऑनलाइन, ऑफलाइन, उसको बड़ा स्टार मार्क है. तो बट जैसे ही यूनिवर्सिटी से कुछ सर्कुलर आएगा दैट विल बी सर्कुलेटेड टू द पीपल, एंड उस मोड के हिसाब से हम लोग ये लेक्चर या फिर ये एग्जामिनेशन हम लोग लेंगे. ठीक है. आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन. Still if you have any doubt, query, you can ask. No, sir. Good. No, sir. Good. Any other? What to study in ISC? Acha. No, sir. Aditya More is No, sir. asking. Okay, Aditya More is asking what to study in ISE. तो बेटा ISE में हमें क्या पढ़ना है? ISE stands for in semester examination. तो उसमें हमें क्या पढ़ना है? उस सब्जेक्ट का, से फॉर एग्जांपल सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 ये हमें पढ़ना है. दैट इज फॉर ISE. ठीक है आदित्य? Yes, sir. Okay, thank you. Now we will move to the ESE. ठीक है. तो अब ये ESE stands for end semester examination. ठीक है. क्या है? end semester examination. Now as the name suggests, end of the semester. तो जब सेमेस्टर खत्म होगा उस टाइम पे ये आपका एग्जामिनेशन रहेगा. ओके. And it will be for 70 marks. Okay. And then it will be based on your unit number 3, 4, 5, 6. जो बचे हुए 4 यूनिट है उनके ऊपर ये बेस्ड रहेगा. ठीक है. एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब होगा? अच्छा, जूम मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, 10 मिनट बाकी है. तो ठीक है, वी विल कंटिन्यू.
ठीक है, बराबर 10:35 को मुझे बता देना। ओके, नाउ ये एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब होगा? सेमेस्टर जब खत्म होगा तब। अब ये सेमेस्टर कब खत्म होगा? स्टिल वी हैव नॉट रिसीव्ड द एकेडमिक कैलेंडर फॉर यू पीपल। कल किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये फर्स्ट ईयर कब खत्म होगा? सो टेंटेटिवली फर्स्ट ईयर विल बी एंडिंग, योर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर बोथ विल बी एंडिंग इन द अगस्त और इन द सितंबर और इन द जुलाई अगस्त सितंबर ऑफ 2022। तो नेक्स्ट ईयर में अगस्त सितंबर में आपका ये खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बड़ा स्टार मार्क लगा के मैं बात कर रहा हूँ, खत्म हो जाना चाहिए। सो कंसिडरिंग दैट अगर हम लोग रिवर्स आते हैं तो मई में यह आपका इसका एग्जाम होना चाहिए, अप्रैल में यह खत्म हो जाना चाहिए आपका सेमेस्टर 1 और उसके एग्जामिनेशन ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दैट शुड बी इन दी April or in the May. Okay, and what will be the syllabus? Syllabus will be unit number 3, unit number 4, unit number 5, unit number 6. Okay, again what will be the mode of this end semester examination? A big star mark. अभी कुछ भी पता नहीं है, तो जैसे आपका ये ISC होगा वैसे ही होने के पॉसिबिलिटी ज्यादा है इन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर। और ये दोनों को मिला के, अच्छा सबसे मेन चीज तो भूल गया, मतलब बताना भूल गया मैं कि पासिंग कैसे रहेगा, कि हम लोग पास है या फेल है ये कहाँ से पता चलेगा? सी, अब ये ISC और ESC इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोनों के मिला के कितने मार्क्स होते हैं? 100। ठीक है, तो ये 100 में से आपको 40 मार्क्स मैंडेटरी लाने हैं। ओके, दिस इज द कंडीशन नंबर 1। आपको पास होने के लिए 2 कंडीशंस है, उनमें से फर्स्ट कंडीशन क्या है? इन दोनों को मिला के आपको अबव 40 मार्क्स लाने हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इसमें से आउट ऑफ 70 मिनिमम 28 आपको लाने हैं, मिनिमम 28। अगर यहाँ पे आपको 28 मार्क्स है, यहाँ पर आपको 12 मार्क्स है, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज पास्ड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अब्सेंट हो, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप अब्सेंट हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यहाँ पर फिर आउट ऑफ 70 आपको 40 मार्क्स गेन करने होंगे। ठीक है, मैंडेटरी यू विल हैव टू स्कोर 40 मार्क्स ओवर हियर, then and then only you will be passed in the system and mechanical engineering subject. I hope passing of this particular thing it is clear. If you have any doubt you can ask. एग्जामिनेशन में कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो। No, sir. No, sir. No, sir. No, Hello, sir. sir. हाँ, yes. No, sir. Sir, just for clarity, unit 1 won't be there, right? In end semester exam. Yes, perfectly. Unit number 1 and unit number 2 won't be there in the end semester examination. जो ये end semester examination रहेगा उसका syllabus क्या रहेगा? Unit number 3, unit number 4, unit number 5, unit number 6. ठीक है, तो that will be the syllabus. Okay, sir. और किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, बेझिझक पूछो, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सेशन बिटवीन यू एंड मी। कोई भी आपके ऊपर हंसने वाला नहीं है, या फिर कोई भी आपके ऊपर आपको कोई भी डांटने वाला नहीं है, तो आप बेझिझक पूछ लो। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आदित्य ने, आदित्य मोरे। बुक्स टू स्टडी फॉर ISC एंड, ठीक है, तो आदित्य वी विल कम बैक टू इट। ठीक है आदित्य, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके, और कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर दिक्कत है, डाउट है तो पूछ लो। चलो, तो कुछ डाउट नहीं है, आई थिंक सो, गुड। और ये लगभग कॉमन रहेगा सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। बट आई एम नॉट ऑथराइज टू कॉमेंट ऑन एनी अदर सब्जेक्ट, बट मैं मेरे सब्जेक्ट के लिए बोल सकता हूँ कि SMA के लिए ये ऐसे ही रहेगा।
सपोज आपको अगर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए अगर कुछ डाउट है, देन यू कैन हैव अ वर्ड विथ योर मैथ्स टीचर, ठीक है, बट आई एम टेलिंग दिस फॉर माय पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम, अच्छा 4 मिनट बाकी है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम में आता है दिस टर्म वर्क एंड दिस प्रैक्टिकल एंड दिस ओरल. So a good thing or a good news for you people is there is no any oral for you people, external oral, ठीक है ना। ये oral क्या होती है, एक्सटर्नल ओरल, मतलब बाहर का कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है और वो आके आपकी वाइवा लेता है, ओरल कंडक्ट करता है और फिर वो आपको मार्क्स देता है। वैसा आपको फर्स्ट ईयर में है ही नहीं, वो आएगा आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में, ठीक है ना। तो हमें क्या है फिर, तो हमें है टर्म वर्क और प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल भी वैसा ही होता है, प्रैक्टिकल भी यूजुअली क्या होता है कि बाहर का कोई एक्सटर्नल आता है और वो आके आपका प्रैक्टिकल करवाता है और वो आपको मार्क्स देता है। बट फॉर फर्स्ट ईयर, ये डिस्काउंट फर्स्ट ईयर के लिए है कि जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है दैट विल बी असेस्ड बाय योर ओन टीचर। तो जो भी आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम देयर फॉर यू पीपल फॉर SME, देन आई विल बी असेसिंग यू, ठीक है। मैं आपका असेसमेंट करूंगा और उस असेसमेंट के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे आउट ऑफ 25, ठीक है। तो वो असेसमेंट वगैरह क्या रहेगा दैट वी विल डिस्कस, बट सो दिस इज हाउ 125 मार्क्स आर डिवाइडेड फॉर सिस्टम एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ as this is the credit pattern, ओके, तो ये हमारा क्रेडिट सिस्टम है। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। तो थियरी में अगर आपको 40 मार्क्स आते हैं मिनिमम, तो आपको 3 क्रेडिट्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल में 25 आउट ऑफ 25 अगर मोर देन 10 मार्क्स आते हैं, देन यू विल बी स्कोरिंग 1 क्रेडिट एंड totally you will be getting 4 credits, ठीक है। Now we have 2 minutes left only for this particular meeting. What you have to do, in the chat box you have to mark yourself as an present. chat box में आपको लिखना है सिर्फ present present present, एक बार present लिखना है आपको, whether you are from D division or C division, आपको chat box में लिखना है present and then you can leave the meeting. Okay, again with the same link you will have to join again after the 10 minutes of break. 10 मिनट के ब्रेक के बाद सेम मीटिंग को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।